मैम माइक भी ऑन कर देना। मैम माइक माइक मैम माइक ऑफ है आपका। Okay. Now, this is a great problem because I have already completed 3 slides, after which I have realized that the camera is not working, the mic रिकॉर्डिंग is है। not working, the so many things. That is really, really absurd. And uh, I request everyone to please join on time. I have already said enough, after which I have realized that some of you hadn't joined, some of you hadn't listened, some of the screen sharing wasn't done, some of the recording wasn't done, which just blew the whole flow of the class. Um, Started with a lot of enthusiasm, and right now the whole class is going down the drain because of so many issues, little issues that have happened throughout. And one more request I want to do. Uh, During the course of the class, I request you not to text or call me, any student who does that, because it just distracts me and the class spoils. Okay? So please don't do that. Again, because now for 5 minutes I've already spoken and I need to restart the whole thing. It is going to be a little out of way, because I won't be speaking the same things that I spoke before, which I have spoken enough. I discussed clustering initially. I have already told you it's a part of unsupervised learning where we do not have class labels. We are dividing the the data according to their similarities. And we put in a lot of input in our algorithm. There is no class label. So that means that um, we do not know in which class the data is going to be categorized into. The only thing that is important here is finding similarities amongst the data so that the data can be grouped together. Now, once a data is grouped together, it forms a cluster, and every cluster has one identity which is similar. Okay. Uh, it is used in things like pattern discovery, and when you want to identify similar features in a group of data. You see here, in clustering, there are no labels. Like you can't say this is a cat and this is a dog. Okay. Or you can't say this is a female and this is a male. You basically put data and you find classes or clusters rather according to their similar features. In the next slide, you'll see that we have a lot of data of people here. We need to cluster these people into um,
groups based on their similarities. So their similarities can be like who's wearing specs, who's not wearing specs, who's wearing a hat, who's not wearing a hat, color of the hair, color of the skin, anything, any differentiating element or any similar element that you can find amongst these people, will put them in a single cluster, right? So it is the key term which is important here is to find what is similar amongst these people. Also, it is important to determine the size of the cluster and the type of cluster you want. You want it hierarchical, you want partitioning. Partition means it is based on some key feature that partitions the data into different parts. Hierarchical means it is derived from a superclass to a subclass. Okay. Now let's Okay, ma'am. come to the next slide. Looking at the slide, you see, you can figure out if anything is similar amongst them or not. Uh, I mean, look at the hair structure of both of them. But can they be clustered together? So these are a few issues that can happen in the algorithm. If I am categorizing or clustering data according to their similar features, then if I'm doing it on a single feature, then both of them will be into a single cluster. But technically, they are not the same. So these are a few things that we need to keep in mind, even when the algorithm is working quite fine. Next, clustering in real world. So what happens is that I am finding out the potential customer base for selling the product. So I need to find who are the customers for my product. Now, what do? I implement clustering algorithm to the group of customers. So I am identifying customers based on what kind of products they buy. And out of them, out of these clusters, I'm going to identify the cluster which is more suitable for me. So the ones that are potential customers for my product. All right. Once I cluster them, I identify these people, I will take their data and I will now sell my product to these people. So you get how in real world clustering is very helpful. Okay, ma'am. Next, customer segmentation. So I need to segment the customers according to the way they spend money. Okay. So there are some customers who spend money, but they buy the same products. They are loyal customers. Some customers who do not spend much, they are low value. Some customers that spend a lot of money, they are high value. And some who have a lot of money, not spending right now, but in future they are expected to spend. So they are the high potential customers. So I am segmenting customers based on their time the frequency of them visiting my place or my shop and their spending power, how much they are spending. So you see here where clustering is used. Data. Data is fed in to algorithms. There are certain features that are selected and data is being processed. Clustering algorithms work on this data and the algorithm results into different clusters. Once these clusters are formed, the result is validated and then it is interpreted so that knowledgeable information or knowledge is extracted out of the information. Have a look at this and understand what exactly is happening. Everyone has understood? Give me a thumbs up or a thumbs down. Yes, ma'am.
Guys, have you understood? Give me a thumbs up or a thumbs down. मैम एक डाउट मैम गॉट इट मैम. मैम, इसमें से अगर इनकम बेस पे क्लस्टरिंग हो रही है हमें, या फिर वो क्लस्टर मॉडल कर रहा है हमारा एज बेस पर, हमें चाहिए इनकम बेस पे, तो कैसे करेंगे फिर? हेलो मैम. All right, moving forward, let's come to the different types of clustering algorithm. The first one is density based. So like I showed you, the graph initially, the dots were plotted on the graph based on the x and the y axis value. Now, the area of high concentration of data points and the other are bifurcated. Okay, so area where there are more dots, they cluster and form one single set or a cluster. Okay. Now, the very important thing Excuse me, about this ma'am. kind of algorithm is that Excuse the me, ma'am. cluster can be of any shape. What we are trying to find out is all the data points that are together or that are placed at a particular location or locality near to each other. This type of clustering algorithm, uh, this type don't try to assign outliers to clusters, so they get ignored. So basically, data points that are a little farther away from the dense clusters are ignored here. Then distribution based. Distribution based clustering approach, all the data points are considered part of a cluster based on the probability that they belong to a given cluster. So this is probability based that they belong to a cluster. It works like this. There is a center point, and as the distance of a data point from the center increases, the probability that that particular point is a part of this cluster decreases. Okay, so if I am selecting a data point and if a cluster point or a data point is away from this particular point, then it may not be a part of this cluster. Okay, so the probability of it being a part of this cluster is reduced. Next is centroid based. So centroid based is, a clustering means in which there is a centroid or a center point that is calculated and a distance that is acceptable. So if a data point is at a particular distance from the centroid, then it is belonging to that cluster. If not, then it does not belong to the cluster. Okay. Hierarchical. So it is based on a hierarchy. For example, you build a tree of clusters. So everything in the organization is from top to bottom. So the top of the hierarchy in an organization must be the manager, then the subordinates, then the peers, then the, people who are employees, simple employees. All right. देखो, हार्ड पार्टिशनल क्लस्टरिंग का मतलब है कि मेरे पास जो क्लस्टर्स है दे आर बाइफरकेटेड वेरी क्लियरली. सॉफ्ट पार्टीशन क्या है कि उनमें बीच में कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो दो क्लस्टर्स में बिलोंग कर रहे हैं. हेरारिकल क्लस्टरिंग मतलब ये कि ऑर्गेनाइज
all the elements of the data into a tree like structure. ठीक है? So partitional is partitioned into different clusters. Hierarchical is that it is based on a certain tree like structure. Excuse me, ma'am. One of the important centroid based algorithm is a k-means clustering. k-means clustering में क्या करते हैं, हमारे पास ना डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड है, अब हमें उनको क्लस्टर्स में डिफाइन करना है. क्लस्टर्स में कैसे करना है, हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट डेटा पॉइंट टू अ पर्टिकुलर रैंडम नंबर डिसाइड करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज हमने क्या करना है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं. तो इस केस में हमने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए 3. ठीक है? रैंडमली सिलेक्ट एनी के डेटा पॉइंट्स एज क्लस्टर सेंटर्स. तो हमने हर क्लस्टर का एक डेटा पॉइंट, सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास 3 क्लस्टर्स होने वाले हैं. अब मैंने हर क्लस्टर का एक डेटा पॉइंट डिसाइड कर लिया. अब मैंने उस डेटा पॉइंट से उस सेंटर से बेसिकली हर डेटा पॉइंट तक का डिस्टेंस इन कैलकुलेट करना है. ठीक है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड द क्लस्टर सेंटर. तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, थ्रू यूक्लिडियन डिस्टेंस और एनी अदर फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस. जब मैंने तुम्हें बोला कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कुछ डेटा पॉइंट्स आर नॉट एज पर द डिजायर्ड और द एक्सेप्टेबल डिस्टेंस, तो वो उस पर्टिकुलर क्लस्टर में बिलोंग नहीं करेगी. तो जो डेटा पॉइंट जिस सेंटर से 3 सेंटर पॉइंट्स हो गए ना, अगर मैंने 3 क्लस्टर डिफाइन किए, जिस सेंटर पॉइंट से वो डेटा पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम है, वो डेटा पॉइंट उस क्लस्टर में बिलोंग करता है. बात समझ आ गई सबको? Did you guys Yes, understand? ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम ये जो क्लस्टर्स है, ये हम इसको यूज किस में और किस पार्ट में यूज कर सकते हैं? मैंने और अभी आपको बताया, क्लस्टरिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई सिमिलर पैटर्न्स. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि आपको आपका प्रोडक्ट मार्केट करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से लोग एक्चुअली आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो आप कस्टमर को सेगमेंट करते हो इन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स के बेसिस पे, और जो कस्टमर्स आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप जैसा प्रोडक्ट पहले खरीद चुके हैं, उन कस्टमर्स को ही आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो और उनको ही बेचते हो. ठीक है? यस मैम. मैम हाँ जी. इमेज बेस्ड क्लस्टरिंग कैसे होगी, जैसे कि आपने वो फेसेस वाला एग्जांपल दिया था, तो हम डाटा हाँ पॉइंट्स को तो जी. प्लॉट कर सकते हैं और उनकी क्लस्टरिंग देख सकते हैं, हाँ. और पर इमेज में कैसे करेंगे? फीचर इमेज में सिलेक्शन, फीचर्स मैंने बताए थे ना इमेज में, बाल, स्किन का कलर, चश्मा पहना है या नहीं, नाक की शेप, कुछ भी, दाढ़ी मूछ है या नहीं. सो डिफरेंट फीचर्स नीड टू बी सिलेक्टेड. देखो, फीचर सिलेक्शन में आप कुछ भी फीचर सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे अगर मैं ये डेटा पॉइंट्स की बात करूँ, तो डेटा पॉइंट्स में भी हमारे पास डिफरेंट फीचर्स ही तो होती है. लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर. ये वाला, अगर मैं डेटा पॉइंट्स की बात करूं, तो हर कस्टमर किस टाइम पे विजिट कर रहा है और कितने पैसे दे रहा है, ये भी तो एक डेटा पॉइंट ही है ना? वैसे ही मैम इधर जैसे फीचर जैसे इसमें सिलेक्शन में भी हमने डेटा पॉइंट्स ही होते हैं. बालों का कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है, ये सारे फीचर सिलेक्शन में ही होता है, दिस पार्ट. तभी मैंने बोला था ये डायग्राम अच्छे से समझो. मैम ये हम तो जानते हैं कि हेयर एक फीचर है, नोज एक फीचर है, पर हम एक मॉडल में हाँ. कैसे कि एक नोज एक फीचर है हमारा? हाँ, तो मॉडल में हमें फीड करना पड़ता है ना, मैम ये हम तो ही फिर फीड करते हैं जब हम इसमें तो एल्गोरिथम बना. हमने क्या? इसमें तो हमने फिर सुपरवाइज कर दिया ना उसे कि हमें एक नोज को फीचर मानना है.
नहीं, सुपरवाइज का मतलब होता है कि अगर नोज मतलब सुपरवाइज में तो नोज वगैरह की फीचर्स देखी नहीं जाती ना, सीधा देखा जाता है कि क्लास लेवल ये एक हाथी है, ये एक शेर है, ये एक कुत्ता है। तीन फीचर्स मैंने क्लासेस बता दी है। अब जो भी चीज इस कुत्ते की तरह दिखेगा वो इस क्लास में आएगा, जो हाथी की तरह दिखेगा वो हाथी वाली क्लास में आएगा, जो शेर की तरह दिखेगा वो शेर की। उसमें मैंने फीचर्स थोड़ा ना आइडेंटिफाई किए हैं। यस मैम। ठीक है, उसमें मैंने प्री डिफाइंड क्लास बता दी है कि अगर कोई ऐसे शेप में दिखेगा जानवर, तो वो हाथी कहलाएगा, ऐसी शेप में दिखेगा तो वो डॉगी कहलाएगा। मैंने उसमें कोई फीचर नहीं सिलेक्ट की, मैंने उसमें क्लास लेबल दे दिए। इसमें किसी क्लास का नाम थोड़ी ना है, इसमें देखो क्लास का नाम है कोई नहीं, मगर इनके कुछ फीचर्स है जो मुझे पसंद आए तो वो मेरे कस्टमर बन गए। यस मैम, ओके। ऑलराइट, एसोसिएशन रूल बेसिकली क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं किसी भी डेटा को कुछ फीचर्स के साथ। ठीक है, मेरे पास कुछ अगर आइटम सेट होता है और डेटाबेस में ट्रांजैक्शन होती है, इसका मतलब कि मैं एक पर्टिकुलर डेटा के ऊपर कितनी तरह से एक एग्जांपल ले लेती हूँ, चलो। सो एसोसिएशन रूल में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं मॉल में देखूं और मॉल में मेरे को पता है कि ब्रेड बटर और एग्स एक ही शेल्फ में पड़े हैं, तो बेसिकली एसोसिएशन रूल के हिसाब से पड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंसान ब्रेड खरीदता है वो बटर भी खरीदता है। तो मैं एसोसिएट कर रही हूँ डेटा को डिपेंडिंग कि वो डेटा एक साथ कितनी बार यूज हुआ है। तो ट्रांजैक्शन T1 में देखो तो ब्रेड, जेली, पीनट बटर ये तीन चीजें एक साथ खरीदी गई है। T2 में ब्रेड और पीनट बटर एक साथ खरीदा गया है। T3 में ब्रेड, बटर, सॉरी पीनट बटर और मिल्क एक साथ खरीदा गया है। T4 में बियर और ब्रेड, T5 में बियर और मिल्क। ठीक है, हमने एसोसिएशन ढूंढी। अब तुम मुझे बताओ कि ये एसोसिएशन ढूंढनी क्यों जरूरी है किसी भी शॉपिंग या सुपरमार्ट में। सोच के बताओ मुझे क्यों जरूरी है ये एसोसिएशन ढूंढनी। बिकॉज मैम ब्रेड, जेली, पीनट बटर, मिल्क और क्या कहते हैं, ये तीन तो रेगुलर ही चीजें है ना जो हम यूजफुल करते हैं। अब बियर वगैरह तो ये तो रेयरली है, बिकॉज ब्रेड, जेली, पीनट बटर और मिल्क एक सीक्वेंस में आ रहा है। नहीं 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 नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ कि एसोसिएशन जाननी क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर मुझे पता है कि जो इंसान बटर खरीद रहा है वो ब्रेड भी खरीद रहा है, तो मैं अपने आइल्स की प्लेसमेंट ऐसे करूंगी कि ब्रेड और बटर साथ साथ हो, ताकि उसको ब्रेड और बटर उठाने में प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं आइल ए में बटर रख रही हूँ और आइल जेड में रख रही हूँ ब्रेड, तो दोनों उठाने में मतलब जरूरी नहीं है ना फिर वो बंदा दोनों चीजें खरीदे, हो सकता है वो एक ही खरीद के घर चला जाए। दैट इज वाई मॉल्स में हमेशा ये स्टडी एसोसिएशंस की होती है, ताकि जो चीजें साथ में खरीदी जा रही है वो साथ में पड़ी हो, क्योंकि जो उठा रहा है उन चीजों को उसको इस चीज में प्रॉब्लम ना हो। दैट इज हाउ मॉल्स एंड ऑल दी शॉपिंग सेंटर्स आर प्लेसिंग दीज आइटम्स। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन रूल। नेक्स्ट हम आते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के ऊपर। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है? दिस इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। अब सुपरवाइज्ड क्यों है? क्योंकि मैंने बता दिया मेरे पास ये दो क्लासेस है, मुझे अपने डेटा एलिमेंट्स को इन दो क्लासेस में डिफाइन करना है। इसमें क्या होता है, देयर इज अ हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या कर रहा है? दो क्लासेस को डिस्टिंग्विश कर रहा है कि ये क्लास और ये क्लास दो अलग क्लासेस है जो इस प्लेन से डिफरेंशिएट हो रही है। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये क्लोजली डेटा के साथ काम करके उनको ढंग से पार्टीशन कर लेता है। कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आउटलियर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। आउटलियर्स क्या होते हैं? जो सपोज इस लाइन के आसपास प्रेजेंट होगा, तो उनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके उन डेटा पॉइंट के फीचर्स
स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्यों वो इस क्लास में बिलोंग कर रहा है और इसमें नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज यूज्ड। नाउ कैसे काम करता है? इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स ओनली। सपोर्ट वेक्टर्स क्या है? ये डेटा पॉइंट्स। We don't have to worry about other observations since the margin is made under these points, which is closer to the hyperplane. तो hyperplane क्या है? वो लाइन जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर रही है। ठीक है, so basically there is a logistic regression that classifier is based on. हर पॉइंट की वजह से एक हाइपरप्लेन बनता है और ये हाइपरप्लेन ऐसा बनता है कि इसमें जितने भी डेटा पॉइंट्स है उनसे उसका डिस्टेंस इतना रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में हम डिस्टिंग्विश कर सके। अब देखो इधर इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये तीन प्लेन्स है, तीन प्लेन्स है जो तीनों इनको दो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रही है। लेकिन क्या ये तीनों ढंग की प्लेन्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दो इक्वल क्लासेस में डिफाइन कर पा रही है। क्योंकि अगर हम रेड लाइन को देखें, रेड लाइन इज क्लोजर टू द ब्लू इंस्टेड ऑफ द ग्रीन। वेरएज अगर हम पर्पल लाइन को देखें तो हमें लग रहा है पर्पल लाइन के क्लोज ग्रीन के 2-3 डॉट्स है, वेरएज ब्लू के कम डॉट्स है। अगर हम येलो की बात करें तो येलो में भी, but we are still not sure because it is one of the 3 options. Okay, ऑप्टिमल हाइपरप्लेन वो होता है जिसका डिस्टेंस इक्वल डेटा पॉइंट से इक्वल लाई करता है फ्रॉम बोथ द क्लासेस। Okay, I think there is a video that I have to show you guys. Let's just see. स्क्रीन विजिबल है ना सबको अभी भी? Okay, Yes, नहीं। ma'am. But this is not the video. I don't know how this. No, the video link is not anymore valid. The video should have been edit link, copy. Let's just try. Yes, because the video is unavailable. It is a support vector machine. Give me a second, give me a second, give me a second, guys. It said it is unavailable and then it suddenly got available. Okay. Can you see my screen now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, so you understand what is a binary classifier? Binary का मतलब वो दो different classes में उसको identify, distinguish कर रहा है, and then it is finding out misclassifiers also. All right, moving on. Yes, ma'am. I am going to move on to the next slide as well. This is a part of your unit number 4, and it comprises of 2 topics which are super easy and वो directly तुम्हारे एग्जाम में आएंगे. What is human computer interaction? What is knowledge management? अब अगर हम बात करें HCI की, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का मतलब आता है, एक सेकेंड,
देखो, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और नॉलेज मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एंड दे वर्क हैंड इन हैंड। तो बेसिकली जब ह्यूमंस इंटरेक्ट कर रहे हैं डिजिटल टूल्स से या फिर कुछ ऐप से या फिर कोई ऐसी चीजों से जिनसे उनकी नॉलेज बढ़ रही है, देन दैट एनेबल्स द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट इन फैसिलिटेटिंग ह्यूमन एंगेजमेंट विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से हम कितना नॉलेज ग्रैस्प कर पा रहे हैं, दैट बेसिस इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ओके, the role it plays in determining the usability and efficacy of digital system, especially those devoted to knowledge management, is transformational। ठीक है, मतलब इतना इंफॉर्मेशन है इस चीज में कि आप काफी कुछ सीख सकते हो with this interaction। आई थिंक आई शुड जस्ट शेयर माई एंटायर स्क्रीन, क्योंकि मुझे एक एक करके सारी शेयर करना पड़ रहा है एंड देर आर वीडियोज इन दिस। गिव मी अ सेकेंड, आई विल अगेन शेयर माई स्क्रीन and show you an example of human computer interaction। वीडियो की ऑडियो नहीं आ रही। Sorry, I was on mute. I just said that now this has given you a gist of what human computer interaction comprises of, what is the psychology behind this, and why it is important to have a good user experience when they are interacting with technology। ठीक है, now the primary aim of HCI is to design and create interactions that post qualities such as intuitiveness, user friendliness and efficiency। अगर आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती है दैट आर नॉट एट ऑल यूजर फ्रेंडली, तो ऐसी वेबसाइट्स पे जाने में ना आपको लगता है कि आय हाय हमें फिर इस वेबसाइट पे जाना है एंड आई नीड टू इंटरैक्ट। वैसे ही अगर हम बात करें अपने एप्स या फिर कोई सिस्टम्स की जिनमें इंटरेक्शन इज डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट टू कंटिन्यू, फिर उस ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने का कोई फायदा है नहीं। ओके, that is why HCI is important before we even start creating softwares। Okay, what are the components of HCI? First is user interaction, user experience। Um, yeah, here user-centered design. Then you have VR, AR. These are the different models that are used. Okay, what are the principles that need to be considered here? We need to keep just one thing in mind, that if we are creating a system or a software or a website for someone, we need to make sure that they like it। Okay, we need to identify our customers, we need to do everything according to what the customer is liking। अब तुम जाके देखो तुम्हारे पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट और यू गो एंड सी आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट, जमीन आसमान का फर्क है। एंड यू नो व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग टू दीज प्राइवेट बैंक्स, बिकॉज देयर वेबसाइट्स आर सो सीमलेस, सो इजी टू वर्क ऑन। ठीक है, क्योंकि यूजर सेंटर्ड डिजाइन है, पता है यूजर को इतनी नॉलेज नहीं है, तो मुझे एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस देना है यूजर को ताकि यूजर को ढंग से चीजें समझ आ सके। वी नो व्हाट इज नॉलेज। जब कोई भी डेटा से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसको हम नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट उस
नॉलेज को हम कैसे यूज कर रहे हैं इन डिसीजन की. I think this is something that you can go ahead and read. Explicit knowledge. Explicit knowledge is knowledge जो हमें different sources से मिलती है. Implicit knowledge. Implicit knowledge है जो हमें लोगों से मिलती है. Tacit knowledge. Tacit knowledge जो होती है हमें personal experience से मिलती है. ठीक है? Okay, ma'am. I think these are the challenges and advantages. ओके, इन क्वेश्चंस को करने से पहले या कर ही लेते हैं इन क्वेश्चंस को. करो, स्टार्ट करो ये क्वेश्चंस करना. मेरे पास एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन पेपर है जो हम करने वाले हैं आज. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन पेपर. ओके, दैट वी आर गोइंग टू डू. आफ्टर दिस वी विल हैव a class which will be dedicated for your revision. ठीक है, it's going to be a 5 hour long class. मैं of course breaks भी दूंगी बीच में. That's going to be the next class where we are going to revise from the beginning till the end what we have done. So before that class, what I wanted to do is जितने भी question papers मैंने तुम लोगों के साथ discuss किए, make sure you have all of them ready with you. मैं previous year papers भी discuss करूंगी, तो you will be able to connect के जो तुमने questions अभी किए हैं वो कैसे तुम previous year papers से relate करके देख सकते हो कि तुम्हारे almost पूरे syllabus के notes बन चुके हैं. ठीक है, चलो start करते हैं ये कुछ MCQs. Okay, ma'am. Ma'am, B आंसर है हाँ, इसका, डिजाइनिंग इंटरेक्शन ऑफ और. अपने आंसर्स खुद लिखो, एंड में चेक करेंगे आंसर्स. जैसे ही सब नेक्स्ट बोलेगे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट. मैम नेक्स्ट. मैम नेक्स्ट इसका सी है, कंसिस्टेंसी. मैम नेक्स्ट बी है इसका आंसर. मैम नेक्स्ट.
Ma'am, next. Ma'am, you will share these PPT along with the questions with us. Yes, I will. मैं ऑलरेडी भेज ही रही थी. मैम भेजा आई है आई ऑलरेडी. मैं हाँ पूरा कर दूंगा, मैं भी कर हाँ दूंगा ठीक है. चैट में. ओके ओके ओके. मैम नेक्स्ट वन. एक्सक्यूज मी मैम, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज. ऑल राइट, एक बार अपने आंसर्स चेक कर लो, फिर मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ सबको, है ना. ओके मैम.
All right, now moving on. I'm sharing. Uh, Give me a second. I'll share your question paper. Okay. Mm. सबको दिख रहा है स्क्रीन? पेपर दिख रहा है सबको? गैस पेपर दिख रहा है? Yes, ma'am. Ma'am, next, please. Ma'am, next, please.
Ma'am, next please. Ma'am, next please. Ma'am, next please.
मैम प्लीज स्लाइड चेंज कर दो। मैम चेंज कर दो प्लीज। ये बेटा आपका हो गया है पेपर। ओके These were मैम। the questions. If you have completed it, you can leave. Okay. ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 23rd है, ये व्हाट इज हम्म क्लस्टरिंग एक्सप्लेन एंड टू क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, तो मैम इसका एल्गोरिदम का मतलब क्या होगा? एल्गोरिदम इन देयर एप्लीकेशन इन बिजनेस। जैसे हमने के मींस क्लस्टरिंग पढ़ा था, है यस ना? मैम। हाँ, ऐसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के बारे में तुम्हें के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लिखोगे और उनकी एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है? के मींस यस। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कब यूज हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तभी मैंने डाले हैं। ठीक है? जी थैंक यू। ओके बच्चे। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। या वेलकम बच्चे।
मैम डन। ओके बच्चे। मैम 4 तक मतलब स्लाइड आपने शेयर करी थी, उसके बाद की आप कर देना रिमेनिंग जो थी। ओके बेटा, मैं अभी आपको ईमेल कर देती हूँ। मैंने आपको ईमेल किया था या व्हाट्सएप किया था? व्हाट्सएप किया था। 1 मिनट मैं मैं कर अभी देता आपको हूँ। सारा मैं सेंड कर देती हूँ, कोई बात नहीं। let me just stop sharing once and then I'll send you, okay? मैम इसमें केस स्टडी नहीं आता डायरेक्ट, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? नहीं, एक केस स्टडी आएगा, हम रिवीजन क्लास में केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। हम्म। हम्म।